Hello bachcho, let's read this question. A dilute FeSO4 was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. State the correct explanation from the following for the observation. और ये हमारे पास following options given है. So let us discuss about this. जो हमारे पास इस question का key concept है. Key concept of this question is oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Reducing agent. Let us see oxidizing agent क्या होते हैं, reducing agent कौन से substance होते हैं. So जो हमारे पास oxidizing agent होते हैं, these are those substances जो oxidize करते हैं other substance को and खुद का reduction करवा लेते हैं. So we can write substance which oxidize the other substance and reduce itself. Reduce itself. And let us see the reducing agent. जो हमारे पास reducing agents होते हैं, that are the substances जो दूसरे substance का reduction करवाते हैं and खुद का oxidation करवाते हैं. So substance which reduce other substance and oxidize itself. Now in this definition हमने oxidation and reduction का use किया है. As we have seen oxidize और reduce करवाता है. What does this mean? So सबसे पहले हम oxidation क्या होता है, reduction क्या होता है ये देखेंगे. Then we will consider the example for the same. Now let us see oxidation क्या होता है and reduction process क्या होता है. Basically जो हमारे पास oxidation process है, it is the addition of oxygen. Addition of oxygen, or it may be removal of हाइड्रोजन. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करें, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. एंड अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, नाउ द पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. बेसिकली इट इज द नंबर जो कि एलिमेंट एक रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं. सो जब हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होता है, then that is the oxidation process. Increase in oxidation number. Oxidation number and oxidation state is the same thing. Now the next reduction process के बारे में हम देखेंगे. Basically reduction process जो है oxidation का reverse होता है. So here we can write removal of oxygen, or there may be addition of hydrogen, and in term of the electrons ये होगा हमारे पास gain of electrons, and oxidation number की term में it is decrease in oxidation number. Now let us consider the example. Let us say हमारे पास reaction है, zinc को हमने copper sulfate solution में dip किया है and it leads to the formation of the zinc sulfate plus copper. So जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है एलिमेंटल फॉर्म, जिंक और कॉपर हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में है.
सो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0. Now let us see the oxidation state for copper in copper sulfate. X हम लेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जो सल्फेट है उसके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है दैट इज -2. सो -2 is added to the x. Overall it is equal to the charge. कोई चार्ज नहीं है कॉपर सल्फेट पे, सो इट विल बी इक्वल्स टू 0. सो x -2 is equals to 0. सो x आ जाएगा हमारे पास +2. So copper की oxidation state is +2 and -2 for the sulfate. The same way हम जिंक सल्फेट के लिए निकालेंगे, x लेट करेंगे एंड सल्फेट के लिए इट इज -2. ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0. x -2 is equals to 0. तो x की वैल्यू वी हैव +2. So now we will see the change in the oxidation number. जिंक्स के लिए हम देख सकते हैं 0 से +2 में गया है एंड इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में. So we can say increase in oxidation number is oxidation process. And कॉपर में हम देख सकते हैं कॉपर +2 से कॉपर 0 में गया है, विच मीन्स +2 से 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड दिस इज द रिडक्शन. नाउ हियर वी कैन सी जो हमारे पास जिंक है वो खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है एंड कॉपर सल्फेट का रिडक्शन करवा रहा है. सो इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट. एंड जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है वो खुद का रिडक्शन करवा रहा है एंड जिंक का ऑक्सीडेशन करवा रहा है. तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो हियर वी हैव सीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो हमारे पास डाइल्यूट FeSO4 है दैट इज फेरस सल्फेट, उसे हमने ऐड करवाया है एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन में. सो लेट अस सी द रिएक्शन फॉर द सेम. जब हमारे पास FeSO4 रिएक्ट करवाया जाएगा एसिडिफाइड परमैग्नेट के लिए जो फॉर्मूला रहता है दैट इज द KMnO4 जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट. एंड एसिडिफाइड है which means acid is present. H2SO4 let us say we have as the acid. So this is the acidified permanganate solution. And जब ये reaction होगा then it will lead to the formation of the Fe2SO4 whole thrice plus MnSO4 plus K2SO4 plus water. Now let us see the change in the oxidation state. जो हमारे पास FeSO4 है in this सल्फेट के लिए इट इज -2 एंड x देखेंगे x लेट करेंगे फॉर द आयरन. सो इट विल बी इक्वल्स टू 0. ओवरऑल चार्ज 0 है, x विल बी इक्वल्स टू द +2 आ जाएगा. here we can write x -2 is equals to 0. x will be equals to the +2. so iron जो है that has the oxidation state of the +2. the next we can see for the manganese जो हमारे पास KMnO4 है इन दिस पोटेशियम के लिए इट इज +1 प्लस मैग्नीज के लिए लेट करेंगे x एंड ऑक्सीजन के लिए -2 रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट. 4 ऑक्सीजन है सो मल्टीप्लाई टू द 4 इज इक्वल्स टू 0. सो x +1 -8 इज इक्वल्स टू 0. x -7 इज इक्वल्स टू 0. x विल बी इक्वल्स टू +7. सो मैग्नीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड हाइड्रोजन जो है +1 में रहता है एंड सल्फेट जो है -2 में रहता है. दीज आर द नॉन जो हमारे मेन देखना है इसमें फॉर द आयरन एंड मैग्नीज. सो हियर इन दिस Fe2SO4 होल थ्राइस हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे इन दिस. लेट अस से आयरन है हमारे पास 2 आयरन है सो 2x लेट हो जाएगा प्लस सल्फेट के लिए इट इज -2 मल्टीप्लाई टू द 3. ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इक्वल्स टू 0. 2x -6 is equals to 0. 2x is equals to +6. x will be equals to 6/2 means +3. यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट में आयरन है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. नाउ इन MnSO4 -2 है हमारे पास
सल्फेट के लिए, सो मैग्नीज के लिए इट विल बी +2, ओवरऑल चार्ज नहीं है इसलिए। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है, it has been changed into the 3 positive, which means oxidation number increase हुआ है, so this is the oxidation process. And KMnO4 जो है in this +7 से +2 ऑक्सीडेशन में चेंज आया है, सो डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, सो इट इज़ द रिडक्शन प्रोसेस। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। एंड हियर वी कैन सी जो हमारे पास आयरन है वो खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है एंड KMnO4 का रिडक्शन, हेंस इट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। एंड जो हमारे पास KMnO4 है, फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास KMnO4 है वो FeSO4 का ऑक्सीडेशन करवा रहा है and खुद का रिडक्शन, हेंस इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो पर्पल कलर है वो फेड हो जाता है बिकॉज जो KMnO4 है इट एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ऑक्सीडाइज कर देता है FeSO4 को एंड oxidizes FeSO4, जिसे हम देखते हैं Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, विच मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है। नाउ हियर वी कैन सी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, option A says KMnO4 is an oxidizing agent, it oxidizes FeSO4, so this is correct. ऑप्शन बी सेज FeSO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ऑक्सीडाइजेज MnO4 नेगेटिव, दिस इज रॉन्ग। वी हैव सीन जो FeSO4 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड सी सेज द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड, पर रिएक्शन तो टेक प्लेस होता है, सो दिस इज रॉन्ग। Option D says KMnO4 is an unstable compound and decompose in the presence of FeSO4 to give a colorless compound. ऐसा नहीं होता, so this is also wrong. By this we can say जो हमारे पास final answer होगा that will be option A. Let us write the final answer of this question, that is KMnO4 is an oxidizing agent. Oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. Let us mark the option A as the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.